Hello students, in this video we will continue further with acids, bases and salts. So in the previous video we were discussing the properties of acids. हम लोगों ने कुछ physical and chemical properties discuss की. हम लोगों ने ये कहा था कि acids are sour to taste. उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि acids जो होते they turn litmus paper red. फिर हम लोगों ने reactions of acids with metals, हम लोगों ने ये देखा था reactions of acids with metal carbonates, correct? फिर हम लोगों ने बेकिंग सोडा देखा था कि अगर जो एसिडिटी होती है स्टमक में बहुत ज़्यादा जब एसिडिटी हो जाती है तो आप बेकिंग सोडा खाते हो क्योंकि उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो HCl के साथ रिएक्ट करके HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है. सो टुडे इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग और कुछ जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस देखेंगे एसिड्स के. सो द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड इज रिएक्शन विद बेस. रिएक्शन ऑफ एसिड with base, okay, with bases. Now this is basically your neutralization reaction जो आप लोगों ने previous chapter में पढ़ा हुआ है. Now neutralization reaction क्या होता है? When acid reacts with base, salt and water are formed, correct? सो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. सो एसिड्स विल रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. ओके, सो से फॉर एग्जांपल HCl है. ओके, when you dissolve it in water you will have HCl solution. When it reacts with NaOH solution, what you get is NaCl, which is also in aqueous state because it dissolves in water, and H2O. Okay, so you have to understand this, that acids will react with bases to form salt and water. Another example would be, let's say you have H2SO4 solution. When it reacts with calcium hydroxide, CaOH twice, okay, you will get calcium sulfate CaSO4, which is aqueous plus H2O. okay, so you will get 2H2O. आप बैलेंस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. Water is in liquid state. Again, this is another example of neutralization reaction. Sometimes neutralization reaction में precipitation भी होता है. So say for example, if I have to give you an example क्या होगा? Let's say you have H2SO4 and it reacts with barium hydroxide, BaOH twice. Okay, it forms BaSO4 जो आपको पता है it's a white colored precipitate. Okay, plus 2H2O. So this is obtained in solid state. So what you realize over here is in every reaction acid is reacting with a base to form salt and water. In some cases that salt is soluble, in some cases that salt is insoluble, so it will form a precipitate. ठीक है. इसके बाद एसिड का जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन है विद मेटल ऑक्साइड्स. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. मेटल ऑक्साइड्स जो होता है दे आर बेसिक इन नेचर. दे हैव अ बेसिक नेचर. ये बेस की तरह बिहेव करते हैं. ओके, सो मेटल्स फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ओके, जिंक ऑक्साइड हुआ, ये सारे बेसिक होते हैं. जिंक ऑक्साइड खैर एम्फोटेरिक है, बट कैल्शियम, अच्छा, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर. दे विल बिहेव लाइक बेसिस. एम्फोटेरिक क्या होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, एंड सिमिलरली जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, so when I talk of non-metallic oxides, they are acidic in nature. Okay, so यहाँ पे एग्जाम्पल होगा let's say CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद SO2 SO3. so this is oxide of carbon. Carbon is a non-metal. this is oxide of sulfur. sulfur is a non-metal. ठीक है, NO2. सो ये सारे जो ऑक्साइड्स है दीज आर एसिडिक इन नेचर. सो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक होता है, मेटल के जो ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक होता है. ओके, नाउ
we will look at reaction of acids with metal oxides. Okay. Now when I say reaction of acids with metal oxides, आपको पता ही है कि metal oxides are basic in nature. So if metal oxides are basic in nature, so जब acids metal oxide के साथ react करते हैं तो metal oxides are basic in nature, ना? So basically this reaction will then become similar to your acid base reaction. समझ में आया ये आपको? तो एक let's do an example. जैसे you have HCl, okay, aqueous HCl. When it reacts with calcium oxide, this is a metallic oxide, okay. What you get is CaCl2. You will get a salt of calcium, that is calcium chloride. Okay. Plus, you will get H2O. Okay. ये बैलेंस नहीं है तो आपको इसको बैलेंस करना होगा. So ये 2. So this is similar to, you can see that salt and water are obtained. अच्छा, ये एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस तभी भी आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. एंड यहाँ पे एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. ओके. So when acid reacts with metallic oxides, again salt and water are formed. So this is again similar to neutralization reaction. Similar to neutralization reaction. ठीक है? Fine. So I hope you have understood this. If you want, we'll do one more example. जैसे अच्छा, let's say you have copper oxide. Okay, this is solid in nature. Okay, इसको लिखा जाता है copper 2 oxide. क्योंकि कॉपर की इसमें वैलेंसी 2 होती है. सी कॉपर शोज वेरिएबल वैलेंसीज. कॉपर कैन हैव अ वैलेंसी 1 और कॉपर कैन हैव अ वैलेंसी 2. सो कॉपर ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद, okay, let's say it reacts with H2SO4 solution. So copper oxide, ये again metal होता है. So this metal oxide, this is basic in nature. तो ये base की तरह behave करेगा. This is an acid. This will react with each other to form salt, that is CuSO4, which is soluble, तो aqueous में लिख दूंगा, and H2O. Again, this is your copper sulfate, and this is also similar to a neutralization reaction. ठीक है? So I hope you have understood this reactions of acids with metal oxides, and you have understood reaction of acids with bases. ये दोनों reactions जो है वो similar nature के ही है. The reason is because मेटल ऑक्साइड्स अपने आप में बेसिक होते हैं. दे हैव गॉट अ बेसिक नेचर. ठीक है? ओके. नाउ नॉर्मली जब भी एसिड वर्सेस बेस रिएक्शन होता है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या आपके पास एसिड है तो उसमें कितना बेस ऐड करना है ताकि रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हो. तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए भी हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं. So indicators tell us whether the reaction is complete or it is not complete. Okay, let me give you an example. Okay. Okay. Let's say you have acid solution. Okay, जैसे HCl solution. Okay. Now HCl solution में आपने phenolphthalein ऐड किया. आप लोगों ने phenolphthalein के बारे में पढ़ा हुआ है.
ना फिनोल्फ्थेलिन जो होता है आपको पता ही है कि फिनोल्फ्थेलिन का कलर एसिड सोल्यूशन में कलरलेस होता है। सो इस सोल्यूशन के अंदर आप फिनोल्फ्थेलिन ऐड भी करोगे तो इट विल स्टिल बी कलरलेस, ये कलरलेस होगा। ओके, अच्छा, इट विल स्टिल बी कलरलेस। ओके, अब धीरे धीरे आप इसमें बेस ऐड करते जाओ, कीप एडिंग बेस इन दिस। जैसे NaOH। ओके, नाउ एसिड ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, बेस धीरे धीरे ऐड कर रहे हो, तो आप बेस धीरे धीरे ऐड करोगे तो क्या होगा, आउट ऑफ सो मच अमाउंट ऑफ एसिड सम पार्ट ऑफ एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो आप जो भी बेस ऐड करते जाओगे एसिड जो है उस बेस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। सो बेस को जैसे जैसे ये न्यूट्रलाइज करता जाएगा, इवेंचुअली इसमें आप बेस ऐड कर रहे हो तो बेस जो है वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा, क्योंकि बेस ये तुरंत एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो इवन आफ्टर एडिंग बेस एसिड विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस, एसिड विल बी प्रेजेंट in excess. Okay, so say for example if you have 10 moles of HCl and आप धीरे धीरे 1 मोल ऐड करो, 1 मोल ऐड करोगे तो HCl का 1 मोल रिएक्ट हो जाएगा, तो 10 में से 1 चला गया, फिर भी 9 मोल्स एसिड बचा हुआ ही है ना, एंड ये एसिड है तो आपका फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस ही रहेगा इस सोल्यूशन के अंदर। अब आप 2 मोल्स ऑफ NaOH ऐड करो तो यहां से 2 रिएक्ट हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ HCl विल ऑल्सो रिएक्ट, तो 10 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 8 मोल्स। सो अगेन द सोल्यूशन इज एसिडिक, तो ये फिनोल्फ्थेलिन जो होगा वो अभी भी कलरलेस ही होगा। धीरे धीरे आप बेस ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। नाउ व्हेन यू ऐड 10 मोल्स ऑफ NaOH तो दे विल रिएक्ट विद दैट, इट विल रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ HCl। Now once it reacts with 10 moles of HCl तो अब आपका NaOH भी खत्म हो गया, HCl भी खत्म हो गया ना, 10 moles reacted with 10 moles। तो अब ना ही इसके अंदर बेस एक्सेस है, ना ही इसके अंदर एसिड एक्सेस है, तो क्या हुआ कि जितना बेस था एंड जितनी एसिड थी ये पूरे के पूरे रिएक्ट कर गए। आपका जो सोल्यूशन होगा उस केस में वो न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि ना ही बेस लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना ही एसिड लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया, तो फिनोल्फ्थेलिन का न्यूट्रल कलर जो होता है वो कलरलेस ही होता है। तो व्हाट विल हैपन इज व्हेन एंटायर acid gets completely neutralized, okay, when completely neutralized solution becomes neutral. Okay, and phenolphthalein will be colorless. सो पहले भी कलरलेस था, अभी भी कलरलेस है। ओके, अब मान लो 10 मोल्स के जगह पे अब आप थोड़ा सा 11 मोल्स ऑफ बेस ऐड करते हो। अब जब आप 11 मोल्स बेस के ऐड करोगे तो क्या होगा कि 11 में से 10 तो HCl के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अब उस केस में बेस विल नाउ बी प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी। अब बेस अगर जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो आपका सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा, एंड सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो बेसिक सोल्यूशन के अंदर फिनोल्फ्थेलिन का कलर जो होता है वो आपको पता है क्या होता है। फिनोल्फ्थेलिन का कलर, द कलर इज पिंक। सो विच मीन्स थोड़ा भी एक्स्ट्रा बेस आप ऐड करोगे तो सोल्यूशन तुरंत पिंक हो जाएगा। दैट इज एन इंडिकेशन फॉर यू कि भाई अब आपको रोकना है। ओके, यू डोंट हैव टू ऐड मोर अमाउंट ऑफ बेस। सो फिनोल्फ्थेलिन ने क्या किया, अपना कलर चेंज करके इन्होंने आपको फिनोल्फ्थेलिन ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि now you don't have to add more amount of base, now you have to stop, you don't have to add more amount of base. Okay, so जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, जब तक ये कलर ऐसा, इसका मतलब एसिड इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, तो आपको बेस ऐड करते जाना है, बेस ऐड करते जाना है, बेस ऐड करते जाना है। एंड तुरंत पहले फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी द पिंक कलर यू हैव टू स्टॉप
बिकॉज पिंक कलर आया इसका मतलब नाउ बेस इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, so it means your acid has become completely neutralized. So now I can say, okay, after this point, any extra amount of base will make solution basic, and basic solution के अंदर phenolphthalein जो होता है, this phenolphthalein becomes pink. Okay, it becomes pink. Okay, and जैसे ही ये पिंक हो जाता है, it is an indication to you कि the neutralization is complete. So हम indicators का यूज करते हैं to check whether the neutralization is complete या फिर neutralization बचा हुआ है अभी. Okay, fine. Now यहाँ पे एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज खत्म होती है. ओके, आपको ये पता ही है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. दे आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव मतलब दे ईट अप, दे क्रिएट होल्स. वो ना जो भी मैटर होता है उस मैटर को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो से फॉर एग्जांपल भूल से अगर जो आपके शर्ट पे H2SO4 गिरता है तो शर्ट के अंदर होल गिर जाएगा. ओके, या वुड पे H2SO4 गिरता है तो वहां पे बर्न क्रिएट हो जाएगा, मतलब उतना पार्ट वुड का बर्न हो जाएगा. सो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. ओके, बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर दे कैनॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर्स. मेटल को डिसॉल्व कर देंगे अपने आप में. यू कैन नॉट कीप देम इन मेटल कंटेनर्स. स्पेशली जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इनको हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं. दीज मिनरल एसिड्स कैन नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज metal will get dissolved in these acids. Dissolved these acids. ओके, अब जैसे आप कहोगे कि सर कॉपर जो है, कॉपर मैंने आपको बताया था इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो कॉपर तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता. हमने फर्स्ट लेक्चर में ये रिएक्शन भी देखा था, कहा भी था कि कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. दैट वाज ट्रू फॉर डाइल्यूट एसिड्स. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, बट कॉपर विल गेट डिसॉल्व्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो वो कॉपर को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. ओके, सो दैट इज व्हाई यू कैनॉट कीप एसिड्स इन मेटल कंटेनर्स. सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर जो आप एसिड्स को मेटल कंटेनर्स में नहीं रख सकते तो आप एसिड को कहां पे स्टोर करोगे? यू विल स्टोर एसिड्स इन द कंटेनर्स मेड अप ऑफ ग्लास और सेरामिक्स. ओके, और सेरामिक्स. द रीजन इज बिकॉज एसिड जो है वो ग्लास या सेरामिक्स को अटैक नहीं करता, ये इसको कोरोड नहीं करता. सो दैट इज व्हाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास और सेरामिक कंटेनर. ठीक है. सो यहां पे जो है वो एसिड का बहुत सा सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है. ओके, देयर आर कपल मोर पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज एसिड जो होता है दे आर, उनका जो भी एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर ये हमेशा आपको सोल्यूशन में मिलता है. विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल HCl इज एसिडिक when dissolved in water. Okay, when dissolved in water. आप अगर जो इसको HCl when dissolved in water, dry HCl is not acidic. Not acidic. या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, HCl गैस होता है, ड्राई HCl गैस
वो ड्राई HCl गैस को ना आप लिटमस पेपर में होल्ड करो या लिटमस पेपर से पास करो, लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिटमस पेपर को आप HCl सोल्यूशन में डिप करो तो तुरंत वो रेड हो जाएगा. नाउ द रीजन इज बिकॉज व्हेन यू डिसॉल्व HCl इन वाटर, मैंने आपको बताया कि HCl और एसिड्स गेट आयोनाइज्ड and produce H3O plus ions. Ideally H plus ions होते हैं, but मैंने आपको बताया कि H plus ions, they in water they exist as H3O plus ions. So HCl, when you dissolve it in water, it gets ionized and produces H3O plus ions or H plus ions. अच्छा, dry HCl does not produce H plus ions. Okay. And because dry HCl does not produce H plus ions, it is not acidic in nature. While HCl dissolved in water is acidic because when it is dissolved in water, it gets ionized and produces H plus ions or H3O plus ions. ठीक है. सो यहाँ पे काफी सारा जो पार्ट है, वो काफी सारा पार्ट एसिड्स का जो है वो खत्म होता है. ओके, नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट ऑफ विथ बेसिस. अब बेसिस के लिए हमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो आपको एसिड सेक्शन समझ में आ चुका है तो बेसिस की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको आराम से समझ में आ जाएंगी. टाइम नहीं लगेगा बेसिस को कवर करने में. ठीक है. ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर. Bye.